नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने मिलकर एक और वीडियो जारी किया है और आपने देखा था कि भी हाल में एक सीरीज ऑफ वीडियोस उन्होंने किए थे जिसमें उन्होंने माधवीपुरी बुच, सेबी के जो काले कारनामे हैं उनको उन्होंने उजागर किया था। अब जो एक वीडियो सामने आया है उसमें वो वरिष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और सुचेता दलाल ने भी इन्वेस्टर्स के भविष्य पर कमेंट किया है। तो इसके पहले कि आज की मैं चर्चा शुरू करूं और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड और तमाम अखबारों में एक खबर है कि इतना कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी उस पर कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस उस पर वीडियो बना रही है। मैंने और अरुण जी ने पता नहीं इस पर कितने कार्यक्रम किए हैं। सारे अखबार इस चीज को लेकर लिख रहे हैं कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रहा है। माधवीपुरी बुच अपने इंटरेस्ट को ज्यादा बचाती हुई नजर आ रही है और हाल में अभी जो आई है कि उसमें उन्होंने एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से पैसे लेकर और एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पर अराइव किया है और वो सारे जो भी एलिगेशंस उस पर लगे थे उन एलिगेशंस को दबा दिया गया है। यानी कि पैसा लेकर कॉम्प्रोमाइज कराने की रिपोर्ट आ रही है। अब ये कंपनी कौन सी है, क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले उस राहुल गांधी के आप वीडियो को जरूर देखें। आइए देखते हैं। We need an expert to take us around what's the impact on the market. I was thinking of Sucheta Dalal because she's an expert on markets. She's been writing a lot about the implications. Really glad that you're looking into this issue because I think it's very serious. So these are going to be like sitting ducks if something goes wrong. We have to be extra careful about them because I'm telling you, from 2 crore to 10 crore, SEBI has got away in the last 10-15 years because nobody knew enough about the capital market and nobody asked questions. Did you hear this latest thing about Adani ji sitting in a meeting to overthrow the government, Maharashtra? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? So this is a financial institution. That's political institution. Correct. He's now deciding who's going to run the Vidhan Sabha. Exactly. And सरकारें गिराना, toppling और ये सब में how can an industrialist so openly come? सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे। अब धारावी कनेक्ट हो जाता है इससे। He wanted this government क्योंकि धारावी मिलेगा या वो सॉल्ट पैन वाला लैंड मिलेगा। And he can only get Dharavi if his valuation is up. 10 दिन मुंबई में था लगभग, वहां सब हैरान है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। अनस्पोकन था पहले, अब स्पोकन हो गया, अब लोग कहने लग गए। ये बात जो आप अक्सर कहते हैं वो अब बंबई में रेजोनेंस उसका बहुत बढ़ गया है। अब लोग खुद कहते हैं, उनके शब्दों में वही बात कहते हैं जो आप पिछले कई सालों से कह रहे हैं। From our perspective, we want to find out who all is in this. It's pretty clear Mr. Adani is there. Yes. It's pretty clear Madhavi Buch is there, controlling the stock market, controlling the valuation. It's pretty clear the Prime Minister is there. Now, who else is in this time? आपने कई बार पूछा कि मार्केट पे इसका क्या इंप्लीकेशन होगा। So let's talk to सुचेता जी। Okay. Really glad that you're looking into this issue because I think it's very serious. India is among the top 5 capital markets in the world. So the credibility of the capital market regulator is immensely important. The question that you rightly asked, which is, it's not that the SEBI chairperson is acting alone. And I don't think any SEBI chairperson ever has had the courage to say they won't appear unless there is some kind of tacit signal that don't worry, we can take care of it. And the really interesting thing is that all the BJP members are fully aligned with the lady without even knowing, allowing her to come, without even asking any questions. They are saying, how dare you call her? Which to us is just completely bizarre because the PSC has every right to call her and listen to her in a neutral fashion. I think what they're doing is a lot of damage to the country and the credibility of the capital market. How do you feel, this type of lack of transparency is going to end up harming the retail investor? The risk primarily is that the bigger you are, the more powerful you are not accountable. Because anybody who says that we are in a system where the SEBI chairperson is not accountable, you didn't disclose, you didn't. वीडियो काफी लंबा है लेकिन आपने सुचेता दलाल को सुना कि उन्होंने बिल्कुल ये साफ कहा कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, कैपिटल मार्केट को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें सुचेता दलाल ने कही। सुचेता दलाल देश की एक ऐसी पत्रकार हैं जिन्हें 40 सालों से ज्यादा का अनुभव है सिर्फ कैपिटल मार्केट्स कवर करने का।
तो उनका जो शब्द है वो काफी मायने रखता है और राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने मिलकर उनसे ये बातचीत की थी। लेकिन आज इस वीडियो के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में जो बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने किस तरीके से उनको नोटिस गया था, नोटिस के बाद एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला हुआ और अभी 12 या 13 नवंबर की बात है कि पैसा देकर और उन पर जो भी आरोप लगे थे उन आरोपों को न खंडन किया गया है न उसको एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि बिल्कुल जैसे कि एक आउट ऑफ द बॉक्स सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं वो सेबी ने किया है। आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद क्या घपलेबाजी से बाज नहीं आ रही हैं सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच। आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट और जिन्होंने सेबी को बहुत क्लोजली समझा है और जाना है, आज अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल तो यही है, जो ये वीडियो राहुल गांधी का सामने आया है और जिसमें उन्होंने सुचेता दलाल से बात किया है। आज अगर सुचेता दलाल ये कहती हैं कि किस तरीके से इस तरीके की खबरें कैपिटल मार्केट्स को खत्म करने की एक तरीके से कोशिश है, उसकी सेंसिटिविटी को समझना नहीं है, तो क्या कहेंगे सुचेता दलाल ने जो बोला है उन बातों पर? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं नहीं, हाँ अब हुआ, अब हो गया। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, अब आप म्यूटेड। हाँ तो नीलू जी देखिए, सुचिता दलाल और राहुल गांधी के कॉन्वर्सेशन में एक बहुत बड़ी बात है कि वो कहीं भी दोनों अडानी का नाम नहीं लेते। उसके बावजूद भी वो सारा कॉन्वर्सेशन उन्हीं के बारे में है कि लोग इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और सेबी के भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनको बुलाया गया हो और इस तरह से उन्होंने मना कर दिया हो आने से। और सबसे बड़ी बात यह है जो लोग आज नहीं समझ रहे हैं लेकिन जरूर समझेंगे, शेयर मार्केट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक तरफा ऊपर ही जाता रहा है। कोविड के अंदर में लोग घर में बैठे हुए थे, कोई कमाई नहीं थी, तो बहुत लोग जिनके पास पैसा था उन्होंने कहा कि जरा देखें ये शेयर मार्केट क्या है, और वो उसको समझने की कोशिश किए। तो उससे क्या हुआ कि जो निवेशकों की संख्या केवल 2 करोड़ थी वो 10 करोड़ हो गई। उससे इतना ज्यादा पैसा आया कि कुछ कंपनियों के दाम अनाप शनाप बढ़े। उसमें अडानी ने अपने शेयर को खूब ज्यादा बढ़ाया क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक नहीं था। अब ये कहना है कि अगर इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो जो है जब वो गिरेगा तो ये जो इन्वेस्टर हैं कल के, जिन्होंने 5 साल बाजार देखा है और कभी भी मंदी नहीं देखी, केवल तेजी देखी है, उनका क्या होगा? और जो है उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं और इस तरह का घालमेल चलता आ रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक मामला है और यही बात वो भी कह रहे हैं। अब आइए कि जो अभी जो अडानी का इतना दौर चल रहा था, तो ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड की जो आर्टिकल है, मैं उसके बारे में पहले बताता हूं कि सेबी में एक स्कीम है कि आप कुछ भी जाओ गड़बड़ सड़बड़ करके आओ, लेकिन एक आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, अपना गिल्ट मत एडमिट करो और कुछ फाइन दे दो। तो वो फाइन देने से तो उसमें क्या होता है कि इन्होंने उसको फॉर्मलाइज किया हुआ है। आप अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करें तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन सेबी में आप कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ओवर द काउंटर टेबल के ऊपर भी पैसा लेते हैं और टेबल के नीचे भी पैसा लेते हैं। तो अगर मान ले हमने 50 करोड़ का गड़बड़ किया और सेबी हमारी छानबीन कर रही है, तो हम सोचते हैं यार कहीं पकड़ा जाएंगे तो 50 करोड़ देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि 50 लाख इनको हम टेबल के ऊपर दे दें और 50 लाख हम टेबल के नीचे दे दें। सेबी ने क्या किया कि इसको ये करने के लिए बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करा कि पहले आपके ऊपर चार्ज होगा, फिर आप कहेंगे कि देखिए आप प्लीज इसको सेटल कर लीजिए, तो फिर जब सेटलमेंट का होगा तो एक कमिटी को जाएगा, वो लोग अप्रूव करेंगे, फिर एक दूसरी कमिटी को जाएगा, फिर वहां से जब वो फाइन तय करेंगे तो आप जब अग्री हो जाएंगे तो उसको पेमेंट करेंगे तो वापस आए। ऐसा ही एक मामला अडानी के ऑफशोर फंड का था।
जिसके अंदर में जो वायलेशन थे कि ये था कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिए और वाइटल फैक्ट्स को सप्रेस किए, ये उनके चार्जेस थे। जो पोर्टफोलियो फंड इन्वेस्ट, जो बाहर से फंड जो इन्वेस्ट होता है इंडिया का, तो उसके तौर तरीके कैसे वो इन्वेस्ट होगा उसका एक कंफ्यूजन है अरुण जी। ये जो इंडिया फोकस फंड्स नाम की जो ये कंपनी है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने सेबी से 64.35 लाख रुपए में अपना सेटलमेंट पूरा किया है। तो ये कौन सी कंपनी है? क्या ये वही कंपनी है जिसका नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया था? क्या इसमें अदानी के स्टेक्स? नहीं, ये 24 कंपनियां जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। अब ये पूरा उसका चेन हमने नहीं देखा। उसमें से एक कंपनी में जो है कंपनी की ड्रॉप डाउन, कंपनी के बच्चे के उसके अंदर में जो है सेबी के चेयरमैन माधवी बुच और उनके हस्बैंड का इन्वेस्टमेंट था, जिसको उन्होंने सरका दिया। हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था और वहां पर जब उन्होंने ये कहा कि हम 24 को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये इनका डिस्क्रिशन है कि कोई चीज कॉम्प्रोमाइज करें चाहे नहीं करें। उस मामले में आपकी पहले तो ये हिम्मत कि सुप्रीम कोर्ट के आपने कुछ बताया नहीं, और चंद्रचूड़ साहब क्या पता जानबूझ के या अनजाने में ऐसी कमेटी अपॉइंट किए कि सारे के सारे रेगुलेट जजों को छोड़ के हर एक आदमी रेगुलेट होता था सेबी से। और एक जो उसमें लॉयर था जिसको नॉलेज था, वो रिलायंस का भी लॉयर रह चुका था और इनके अडानी का भी लॉयर रह चुका था। उस आदमी की जजशिप 1 साल से पेंडिंग थी, तो सबने इनको जो है एक क्लीन चिट टाइप का दे दिया। और चंद्रचूड़ साहब, वी मस्ट ट्रस्ट आवर रेगुलेटर। अरे कैसा ट्रस्ट? आप ये कहते वी मस्ट ट्रस्ट अडानी, उसके जगह उन्होंने कहा वी मस्ट ट्रस्ट योर रेगुलेटर। और ये भी नहीं जाना कि कितना बड़ा गड़बड़ हो रहा है। ही वॉज इमीडिएटली, उनके बाद वो प्रूफ कर गए कि यही खुद उसमें थी। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए कि ये जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना जो है ये जरूरी नहीं है, सेबी उसको रिफ्यूज कर सकती है। तो आपको मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया। जो नोटिस दी ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वगैरह के बाद दी, जानबूझ के। ये नोटिस जो है फरवरी के लास्ट डेट की है, ये लीप ईयर है, तो 29/2/24 की है। अब आप देखिए कैसे कितनी तेजी से काम हो रहा है, और इसीलिए हो रहा है, वो यही दिखाता है कि इसमें गड़बड़ है। क्योंकि हमें नहीं उम्मीद है कि कोई भी मामला, राकेश झुनझुनवाला भी गड़बड़ करते थे, तो वो शो कॉज नोटिस और वो करके वो पैसा देके लॉयर वगैरह को देके जो है वो सेटल कर लेते थे। अच्छा भाई ये फाइन दो, कहते थे मजाक में कि भाई ब्रोकर और हम लोग जो है वी आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, तो गलत हुई तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं दे दो। फॉर हिम मनी डिडंट मैटर। तो इनका देखिए 29/2 को इनको शो कॉज नोटिस देती है, 8/5 को ये कहते हैं कि एक सेटलमेंट एप्लीकेशन डालते हैं। 6, सब इस साल की बात बता रहा हूं, 6-8 को क्या होता है कि इंटरनल कमिटी मीट करती है तुरंत सेटलमेंट कमीशन को वो देख के, और उसी महीने में 28/8 को हाई पावर एडवाइजरी कमिटी है वो उसको नेगोशिएट करके क्लियर कर देती है। अब क्या होता है कि इसको लास्ट क्लियरेंस जो 3 होल टाइम मेंबर, 3 या 4 अभी कितने हैं नहीं मालूम, वो मिलके क्लियर करते हैं। ये मीटिंग होती है 28/10/24 को, मतलब अभी 15 दिन पहले। और उसमें एक जो होल टाइम मेंबर है वो भी इसी तरह का घालमेल में जो है शामिल है। वो किसी कॉरपोरेट को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दिया है। अब इन लोगों के पास जो भी आते हैं इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है। पहले तो बेचारे सरकारी लोग आते थे तो उनके पास एक मकान से ज्यादा कुछ नहीं रहता था, इनके पास शायद वो भी नहीं रहता हो। तो उन्होंने दिया, और उसके बाद जब वो क्लियर करते हैं तो जो है 13/11 को उनको बताया जाता है, वो पैसा देते हैं और कल जो है उसको ऑर्डर पास कर देती है। अच्छा, जब हमने वो देखा कि ये ऑर्डर किसने पास किया और इतने जल्दी में, तो एक लेडी का नाम आया, इनका नाम है बरनाली मुखर्जी।
तो मैंने खुद, यही एक वो महिला है जो कि बैंक ऑफ राजस्थान का 500 करोड़ का मामला जो है 30 करोड़ में इन्होंने छोड़ दिया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि कितने पैसे इन्होंने ज्यादा कमाए ये हम नहीं इसको बता सकते, इसलिए मैं केवल 30 करोड़ में छोड़ देती हूँ। वो सारा केस करप्शन का था और मैं डेफिनेटली कहता हूं कि उसके बॉस ने या उसने बैंक ऑफ राजस्थान से लंबा पैसा लिया था, क्योंकि द केस इटसेल्फ वो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और अभी भी वो मेरी रिट 172 वो 2015 की रिट है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हमने यही बात कही है कि ये जो है, और रिकॉर्ड बेस्ड कोई भी चीज शेयर बाजार में होती है तो वो चेक से होती है, कोई ऐसा तो होता नहीं है। वो कहती हैं कि तो उसी अफसर को ये मामला दिया गया। तो जहां मैंने ये नाम देखा और ये हड़बड़ी देखी तो नहीं, तो अरुण जी का ये कहना सही होगा कि माधवीपुरी बुच ही बरनाली मुखर्जी जिनका आप नाम बता रहे हैं कि उन्हीं के हवाले से उन्होंने करवाया होगा, और ये कॉम्प्रोमाइज जो फोकस फंड्स का बुच के कहने पे हुआ है। और ये जो 3 महीने में फरवरी में नोटिस देते हैं, मई में वो आता है सेटलमेंट के लिए, और फटाफट आपने उसको सब क्लियरेंस दे दिया। क्या दिखाता है कि वो बुच कहना चाहती हैं और कोई भी मामला हो तो लाओ, मैं सेटल करवा देती हूँ, ये जो है मेरा टर्म के पहले, और वहां भी कि देखिए मैं कितनी लॉयल हूं, हमको कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, आप प्रोटेक्ट करिए मुझको, मैं प्रोटेक्ट करती हूँ अडानी को। तो ये जो ऑर्डर आया है उससे बड़ा क्लियर हो गया कि जो है वो एक अगर आप लोगों को समझाना हो तो ये तो फिर एकदम क्लियर ऐसा केस है अरुण जी कि जहां पर उनको इतनी जल्दी इस समय मची हुई है माधवीपुरी बुच को कि फरवरी में अगर वो रिटायर करेंगी तो रिटायरमेंट के पहले वो कितने केसेस निपटाकर और इसी तरीके से पैसा लेकर अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, तो फिर क्या ये बिल्कुल एक क्लियर कट केस ऑफ करप्शन नहीं है? सेबी का भ्रष्टाचार का ये ब्रेजन भ्रष्टाचार वो खुलेआम कर रही हैं, और वो भी कॉम्प्रोमाइज के नाम पर। भाई देखिए, ये बात जो बरनाली मुखर्जी का जो ऑर्डर है, उसी ऑर्डर जो मैं बताया 500 करोड़ का 30 करोड़ में कर दिया। और क्या कारण है कि उसी अफसर को, हम कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, हमने उस पर एलिगेशन लगाया सेबी के ऊपर, भले नाम से नहीं, लेकिन उसी ऑर्डर के खिलाफ मैंने एलिगेशन लगाया है कि सेबी ने 500 करोड़ का मामला जो है 30 करोड़ में सेटल कर दिया। उस समय कानून था कि आप जितने का भी गड़बड़ करेंगे उसकी 3 गुना पेनल्टी लगेगी, तो 500 का 1500 करोड़ रुपया पेनल्टी लगना था। तो आप सोचिए कि जो आदमी पकड़ाया था, और जो आदमी जो पकड़ाया था, जो प्रमोटर था दयाल की, उसे कोई उसकी अडानी से भी गुजरी रेपुटेशन थी तब, अब तो अडानी उसको सरपास कर गए, लेकिन वो भी बड़े कलाकार आदमी थे, ऐसा ही करते थे खाली। तो अडानी को इस तरह से इनका एक ऑफशोर फंड का, जिसमें कि उन्होंने, क्या एलिगेशन है कि आपने ओनरशिप, उसके स्ट्रक्चर को और कंट्रोल के बारे में आपने गलत जानकारी दी। इसका क्या मतलब कि एक्चुअल कंट्रोल शायद विनोद अडानी के हाथ में था, आपने किसी और के नाम पर दिखा दिया, या और किसी के नाम पर था, आपने विनोद अडानी के नाम पे दिखा दिया। यह एलिगेशन था, इसको सही करना बहुत जरूरी था। 64 लाख तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, हाथ का मैल भी नहीं है, ऐसे चुटकी बजाएं तो 64 लाख गिरता है, क्योंकि वो सारा बैंक का और शेयर बाजार का गलत तरह का पैसा है। तो उन्होंने कहा 64 लाख, उन्होंने कहा ये लीजिए, और फटाफट सारा क्लियरेंस। तो ये प्रूफ होता है जो जिस हड़बड़ी में, जिस कम समय में, और जिस आदमी का केस था, सेबी माधुरी बुच को या मेंबर को क्या कहना चाहिए था कि देखिए ये अडानी का मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें हमारे ऊपर आरोप है, हमारे चेयरमैन के ऊपर आरोप है, अगर हम ये काम करेंगे तो लोग हमारे को जो कहेंगे कि देखिए आप मिली भगत। इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर आपने नहीं भी किया तो आप क्या कहेंगे? जैसे अभी आप जस्टिस खन्ना ने कहा, एक छोटी सी बात थी, पेड़ कटे थे, उनके पास केस आया, बोले कि दिल्ली के मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पटना गया था और उनके साथ मैंने समय बिताया, इसलिए मैं ये केस नहीं सुनूंगा। तो इनका क्या फर्ज बनता था
कि कम से कम इसको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते। 64 लाख रुपया आपके लिए इतना बड़ा अमाउंट हो गया, आप इन्वेस्टर को तो एक ढेला नहीं देते हैं, और ये 64 लाख के लिए आपने जो है उनको फ्री पास दे दिया। अब तो वो कहेंगे कि सेटल्ड ऑर्डर। तो ये आप कितने कॉम्प्रोमाइज करके जाएंगे, इसका कोई ये नहीं है। और ये दिखाता है कि सेबी डज नॉट केयर, बेईमान है, और आप इनको बेईमान कहिए तब भी इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। लेकिन अरुण जी, अब आप ये नहीं, तो अच्छा, अब मैं तब मैं वो फिर उस बात पर आता हूँ, सुचिता दलाल और राहुल गांधी के कॉन्वर्सेशन में, जब वो कह रही हैं कि ये छोटे निवेशक जिन्होंने आज तक एक मंदी नहीं देखी है, जब ये गिरेगा तो क्या होगा, और हम जो है वर्ल्ड के 4 सबसे बड़े कैपिटल मार्केट के एक में गिनी जाती है, और अगर हमारे यहाँ अगर ये देखा जाएगा कि ये रेगुलेटर इस तरह का है तो हमारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी बाहर में। ये सारी बातें जो वो कह रही हैं, और एक तरफ जो हो रहा है रियल टाइम में वो दिखाता है, और ये भी कहती हैं कि आज तक किसी सेबी की ऑफिशियल की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीएसए के सामने आने से इनकार कर दे। नहीं, तो अब जो आम आदमी के समझने के लिए है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा रहा है, अब उस बेचारे का भरोसा तो सेबी से उठ चुका है, और अब सेबी एक ही ऑब्जेक्टिव सभी का ऐसा लगता है कि पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और वो ये है कि जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाली कंपनीज हैं या फिर जिनके ऑफशोर स्टेक्स हैं, अगर उन पर कोई भी फ्रॉडुलेंट एलिगेशंस लगे हुए हैं या भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उनसे पैसा लेकर इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करती हुई माधवीपुरी बुच नजर आ रही है, और जल्दबाजी में नजर आ रही है, ताकि उनके टेन्योर खत्म होते होते जितने भी ऐसे जो काले कारनामे हैं उनके चैप्टर को वो क्लोज कर सके। क्या ये बिल्कुल साफ वो मामला नहीं है? नहीं, अब तो यही लग रहा है कि वो प्रिज्यूम कर रही हैं कि देखिए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन तो चालू हो गया होगा, अभी हमने तो देखा नहीं है ऐड वगैरह, लेकिन जो भी है अब इनको ये लग रहा है कि दो कारण से हड़बड़ दड़बड़ कर रही हैं। एक तो कि हमको पीएससी में नहीं अपीयर होना होने से हमको सरकार बचाए, तो जब तक है तो अडानी का हम काम करते रहेंगे तो बच जाएंगे। और दूसरा है कि अगर मेरा टर्म केवल फरवरी तक है और हमको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसके पहले जो होता है ना कि जितनी फाइलें हों, जैसे लास्ट मोमेंट में भी सरकार है तो अडानी को धारावी की भी जमीन दे दो, ये भी दे दो, तो सारी फाइल पर दस्तखत करके जाते जाते जो है निपटाते जाओ, तो वो उसके हड़बड़ी में है। क्योंकि ये जो होल टाइम मेंबरों ने ये किया, तो ये दिखाता है कि ये सारे सेबी वाले होल टाइम मेंबर की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये सारे जो हैं माधवी बुच के गुलाम हैं, वो जैसे बोलती है वैसे वो करते हैं ना, वो भी सरकार के वो है। और ये मैटर जब बरनाली मुखर्जी को दिया गया तो उससे तो साफ हो गया कि इनका बैकग्राउंड ही ऐसा है। अगर नहीं है तो आप सोचिए ना, 9 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले को नहीं ले रहा है, तो उसमें ये तो पता चलता ना कि ये सच। हमें याद है ये मामला केहर साहब के पास आया था जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे शायद, तो उन्होंने हमें देख के कहा कि अगर वो पिटिशनर कह रहा है कि 500 करोड़ का घपला है तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सही बोलेगा, क्योंकि हम उसको जानते हैं कर्नाटका से। मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयरली जाता हूं, मैं खाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करता हूं, और उसके अलावा हमारी कोई कमर्शियल वहां पे नहीं है प्रैक्टिस, और मैं करना भी नहीं चाहता। तो जब वो 500 करोड़ का मामला था तब जाके फिर गोगोई साहब ने उसमें नोटिस इशू करी। लेकिन आप देखिए, तो ये वहां पर जाके हर जगह ये करते हैं क्योंकि इनकी पूरी मोनोपोली है, किसी के पास कोई फुर्सत नहीं है। अगर आज शेयर बाजार में किसी का 50,000, 2 लाख, 3 लाख रुपया अगर चला जाता है तो वो बैठ के उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, उसको अपने लॉस को वो लेके वही सोचता है कि चलो कहीं मुनाफा। लेकिन अगर ऑर्डर देखें आप अरुण जी, तो उसको जिस तरीके से जस्टिफाई किया गया है, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की स्टोरी से कोट कर रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप उसको समझाएं थोड़ा सा, कि अकॉर्डिंग टू द सेबी ऑर्डर द फंड allegedly violated regulation 22
1C and H of the FPI Regulations 2019. और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि these two clauses relate to the fit and proper criteria of the investor and informing the designated depository participant in writing if there is any material change in the ownership or control of the fund. The order also points to the alleged violation of Clause 6 of the Code of Conduct of FPI Regulations, which directs the FPIs to not make any untrue statement or suppress material facts in any document. और लास्ट में जो उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है वो ये है कि in view of the acceptance of the settlement terms and the receipt of settlement amount as above by SEBI, the instant adjudication proceedings initiated against applicant wide SCN dated February 29, 2024 is डिस्पोज्ड ऑफ, ये उन्होंने जस्टिफाई करते हुए ये ऑर्डर दिया है। तो क्या इसमें वाकई में क्या कानूनी कोई दांवपेच आपको लग रहा है कि जिस एक कोई लीगल लूपहोल का उन्होंने फायदा उठाकर इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज किया है? नहीं, इससे तो देखिए मेरे पास उसके पूरे टेक्स्ट है कि बेसिक उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि ये जो फॉरेन वाले जो पोर्टफोलियो फंड था उन्होंने आके मिस रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने कि किसकी ये कंपनी है, किसका कंट्रोल है, किसकी ओनरशिप है, ये उन्होंने सही नहीं बताई थी। तो ये जाहिर है कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वगैरह आई तो छानबीन हुई तो उससे ये पता चल गया कि इन्होंने झूठ बोला था। अब इसको जो है सही करना था और दोनों जानते हैं कि ये गलत था। तो इसके रिस्पेक्ट में जो शो कॉज नोटिस गई, जहां की इन्होंने मिसलीड किया या झूठ बोला या मिसरिप्रेजेंट किया, विच अमाउंट्स टू फ्रॉड। अगर कोई चीज सही नहीं है और आप किसी को नोइंगली गलत बोलते हैं, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में जो है, एक है कि नोइंगली आपने मिसरिप्रेजेंट किया, एक है कि गलती से हो गया। तो यहाँ कोई गलती वगैरह नहीं होती है, यहाँ नोइंगली करा। अब इसके ऊपर जो है सारा इन्वेस्टिगेशन हो, तो इसका जो लिखा पोती करना था, अब क्या था, अब ये इसके पीछे कोई नहीं जा सकता है, इन्होंने उसको ठीक कर लिया। नहीं, लेकिन क्या ठीक तो पैसे दे के कॉम्प्रोमाइज करके अब ये कहेंगे कि इसमें आप और सेंटेंस देखेंगी कि अपना गिल्ट भी मैं नहीं मानता हूं। अगर ये तो हुआ कि मैं मर्डर करके आया, मैं अपराधी हूं और मैंने कहा कि भाई ठीक है, जो हुआ हुआ, मैं जो है 1 करोड़ रुपया देता हूं, इसको बंद कर दीजिए। आप उधर भी जो अक्यूज्ड है उसको भी आपने पैसा दे दिया, इधर भी पैसा दे दिया और सब बंद हो गया। तो जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है वो तो हजारों करोड़ का वो करता है घपला, वहां तो एक आदमी का करता है। तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो अपनी इनोसेंस को खरीद सकता है, जो आप और हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा देखिए, ये जो कानून है सेटलमेंट वाला, यही गलत है। ये जो ड्यू प्रोसेस लॉ का जो हमारे और वो आपके ऊपर लगता है, वो नहीं लगता है। तो क्या इन्होंने कितना बड़ा घपला किया जो ये 64 लाख में छूट गए। ये उसका पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है कि ये नहीं बताएंगे, ये अपना जो गिल्ट है उसको भी ये नहीं मानेंगे। तो ये जो उन्होंने अभी किया, ये इनकी हिम्मत दिखाती है, और कि आप कुछ भी कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, आई केयर टू हूट्स। एब्सोल्युटली नहीं, आज इसीलिए ये दोनों स्टोरीज को क्लब करके ही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और इसी वजह से आज ये दोनों स्टोरीज को हमने क्लब किया। पहला तो राहुल गांधी का जो वीडियो है, बार बार वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके से अदानी इस समय, और ये बात तो अब खुद अजीत पवार ने कह दी कि भाई अदानी केवल कॉर्पोरेट की दुनिया में ही बादशाह नहीं बने हुए हैं, वो तो अब राजनीतिक बादशाह भी बन गए हैं। वो सरकारें तोड़वाते हैं, गिरवाते हैं, लेकिन लगातार अपने वीडियोस में जो सिंडिकेट बुच, सिंडिकेट सेबी वाले जितने भी वीडियोस हैं, उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि माधवीपुरी बुच को बचाने के पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, और वो ताकत बहुत ऊपर के लेवल पर है। कौन बचा रहा है वो काफी कुछ क्लियर है, और सारे उन्होंने डॉट्स को ज्वाइन करके उन वीडियोस में ये बताया कि नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, माधवी बुच, सेबी, ये सब का कनेक्शन उन्होंने जोड़कर बताया। लेकिन ये जो आज हम लोगों ने जो डिस्कशन किया
वो थी इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स की स्टोरी। वो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिसने कि एक मैटर को सेबी के साथ सेटल कर लिया। 64.35 लाख रुपीस में ये पूरा मैटर सेटल कर गए। इस बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत सारे नियम कानून का उल्लंघन किया था और सेबी ने एक कमेटी मीटिंग बुलाकर और बाद में उन्होंने इस तरीके के मैटर को सुलझा कर रख दिया। अब ये बात बिल्कुल अरुण जी सही कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के पहले वो चाह रही है कि जल्दी जल्दी ऐसे मैटर्स को दबा दिया जाए, सुलझा दिया जाए, लेकिन इसकी छानबीन कौन कैसे करेगा? पहली बात तो माधवी बुरी बुच ने जो इंडिविजुअल लेवल पर जो घालमेल किया है सर, एक तो वो नहीं, उसकी कोई जांच हो रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आज ये एक फॉरेन पोर्टफोलियो है, आई एम श्योर ऐसे कई एफपीआईज आए होंगे जिनके केसेस अब इसी तरह से जल्दी जल्दी करेंगी, तो क्या इसको लेकर कोई कोर्ट जाएगा? इसको कैसे रोक लगेगी? इसकी छानबीन कैसे होगी ताकि असलियत पता चल सके कि आखिर माधवीपुरी बुच कर क्या रही है? देखिए, ये इसकी पहले ये समझिए कि ये जो फंड है ये विनोद अडानी और गौतम अडानी का ही है। ये वो पैसे हैं जो कि दाम बढ़ा के कोयला का या मशीन का या किसी और तरीके से या सोलर पैनल का जो इंपोर्ट होता है, जो बीच में एक बिचौलिया बैठ के हांगकांग में या दुबई में या कहाँ एक दूसरा इनवॉइस दिखाता है कि हमने उससे खरीदा और तब आपको भेजा, वो एक्स्ट्रा फंड जो घूम के आके फिर अडानी के कंपनी में लगता है, जिससे कि वो अपना 75% से बढ़ा के 90% स्टेक कर लेते हैं और जिसके कारण मदद मिलती है अपने शेयर को बढ़ाने का। ये वो फंड है। आप पहले समझिए कि ये कौन सा फंड है। इट इज वन ऑफ दोज फंड्स जिसमें उन्होंने ये रियायत दी है, फुल्ली अवेयर। तो किसी से छिपा नहीं। अडानी, हाँ, मतलब अडानी के ही भ्रष्टाचार को उन्होंने कवर अप एक तरीके से करने की कोशिश की, क्योंकि अगर ये मैटर कंपनी का है। अगर सेबी के चेयरमैन या बर्नाली मुखर्जी या जितने वहां पर मेंबर बैठे हैं हाई पावर्ड कमेटी वाले, अगर उन्होंने स्विट्जरलैंड के बैंक की हाई कोर्ट की रिपोर्ट नहीं पढ़ी हो तो लानत है इनके ऊपर। दे डोंट डिजर्व टू बी देयर। वहां पर यही लिखा ना कि वहां के पैसे आके यहाँ शेयर बाजार में 75% से 90% बढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज उसमें 10 आदमी हैं तो ये प्रिज्यूम अडानी तो 10 को खरीद सकते हैं, उनके पास तो इतना पैसा है। वो सरकार को जब बदल सकते हैं, जब वो 40 MP MLA खरीद सकते हैं, जो 50 खोखे की बात हो रही है, तो ये चंद 10 लोग सेबी में क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछा, इनको कंप्लीट इम्यूनिटी है। ये बात आज राहुल गांधी ने भी कही कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कुछ नहीं कर सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट। वो जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये सुनिए, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सेबी में इनकी 4 मैटर में मैं कंप्लेंट किया हुआ हूं और मेरे पास वो रिसीटेड कंप्लेंट पड़ी हुई है। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि ये रेगुलेटर के खिलाफ है, इसमें मेरा नहीं कोई मामला, ये उठा के मिनिस्ट्री को भेज देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में चला गया। अब वो मिनिस्ट्री कुछ नहीं करने वाली है। ऑन इट्स ओन सीवीसी आज तक एक भी सेबी के केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है। आज तक सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है जी। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ये इस बात को जानते हैं, इसलिए जम के पैसा कमाते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं हर आदमी कि ठीक है तुमको छोड़ देते हैं, हम ये नहीं इसको इन्वेस्टिगेट करते, हम ये नहीं करते, बोलो। नहीं, लेकिन अब ये जो पूरा जो एक दरवाजा खुला है अरुण जी, इतने बड़े भ्रष्टाचार का और इस लेवल पर कि जहां पर टॉप से लेके बॉटम तक सब मिले हुए हैं, बड़ा कॉर्पोरेट हाउस अपनी उंगलियों पर सबको नचा रहा है, पूरा जो देश का तंत्र है आज कहां पर आकर खड़ा हुआ है। राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, लेकिन वही एक जो घिसा पिटा सवाल हम हर प्रोग्राम में मैं आपसे करती हूँ, मैं पूछ के भी थक गई हूँ, लेकिन पूछना जरूरी है, इसलिए मैं फिर से पूछ रही हूँ कि अगर इस लेवल का भ्रष्टाचार जिसमें कि पूरी सरकार मिली हुई है, कॉर्पोरेट दुनिया का जो सबसे बड़ा बादशाह है
वो मिला हुआ है। सेबी को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट बिल्कुल लगता है कि खत्म ही हो चुका है। आखिर इसकी जांच, इसकी तह तक लोग कैसे पहुंचेंगे? आज पब्लिक को असली जो चेहरा है वो कैसे पता चलेगा? हम और आप बात करेंगे, कितने प्रोग्राम से बात किया, लेकिन कितना एक्शन हुआ मुझे नहीं पता। कोई एक्शन नहीं हुआ, चीजें वही की वही है। अब ये लेटेस्ट स्टोरी ये भी आ गई है कि ये जो इमर्जिंग इंडिया फोकस का था, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया और माधवीपुरी बुझ नहीं करवा दिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई फर्क पड़ेगा। और इसकी तह तक लोग, ये क्या असली जस्टिस इस मैटर में हो पाएगा? क्या सजा मिलेगी आखिर माधवीपुरी बुझ को या सेबी के उन ऑफिसर्स को? नहीं, कुछ नहीं होगा। देख नीलू जी, ये सबको मालूम है, कानून इसीलिए इस तरह का बनाया गया है। ये कानून जो है मिलके अडानी अंबानी इन लोगों के लिए बनाया गया है। एक होल टाइम मेंबर थे, मैं उनका किस्सा बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि यूके सिन्हा हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं 4 कंपनियों को छोड़ने में। उसमें एक बैंक ऑफ राजस्थान था, एक रिलायंस था और एक सहारा का था और एक और कंपनी थी। उन्होंने लिख के भेजा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने उसको लीक कर दिया फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर बन गए प्रेसिडेंट, उनके ऊपर जो है खामोखा एक्शन हुआ। तो ये हाल है ईमानदारी का। और जो लोग थे सबको बदल दिया गया सेबी में। तो देखिए, ये कैपिटलिस्ट है। और जो वो कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, राहुल गांधी ने जो पिछली बार कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिस्ट, ये जो सेलेक्टिव हो रहा है जिससे और लोगों को नुकसान हो रहा है, वो बात सही है। ये चंद जो ऊपर के 4, 5, 10 लोग हैं, यही लोग खाली गड़बड़ करते हैं और अपना जो है शेयर बाजार में जो भी मन में आता है करते हैं। तो ये जो है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इनकी कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी एक चंद्रचूड़ को देखने के बाद ये समझ में आ गया। और अभी पारदीवाला, जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने एक फाइन थी मुकेश अंबानी के ऊपर। अगर उनको सही मामला पता होता, वो मामला बेगर देखे हुए, पहले का केस उन्होंने सुना नहीं कि क्या मैटर में क्या गड़बड़ी हुई जिसके कारण ये फाइन लगी। वो फाइन 40-50 करोड़ की नहीं लगनी चाहिए थी, वो 1500 करोड़ की फाइन लगनी चाहिए थी। उन्होंने डिसमिस कर दिया। कौन उसको डिले किया, ये भी उन्होंने, इट इज सच एन ओल्ड मैटर। अरे डिले तो से क्या कारण है कि सारा डिले जो है वो तो रिलायंस ने किया, सेबी ने थोड़े किया। उसमें बहुत सारा सेबी ने किया, यूके सिन्हा ने किया और रिलायंस ने किया। तो ये जो हो रहा है, हाँ नहीं, भ्रष्टाचार जिस लेवल का है उस पर हम लोग बात कर ही लगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया, हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा पैसा है इन्वॉल्व कि कोई भी अफसर सेबी का हो या सैट का हो, मैंने वो तरुण अग्रवाल का नाम लिया, मैं नाम लेके कह रहा हूं कि उनको सैट का खाली रखा गया जगह जब तक कि वो रिटायर ना करें और वहां पर आ ना सके, और वो रिलायंस को हरदम फेवर करते थे। आप उनके ऑर्डर पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि जब तक इस देश में ये जो ऊंचे ओहदे पर लोग बैठे हैं, और अगर ये नहीं अवेयर होते कि जब जो कॉरपोरेट का कोई रेपुटेशन नहीं है, गड़बड़ करते हुए केस आते हैं, तो उनको ठीक से इन्वेस्टिगेट करके उसको जो भी जुर्माना ये हो कि एक डिटरेंट हो, ये आप जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों कि ये जिस तरह से छूट जाते हैं तो उनको तो इनकरेजमेंट मिलता है। आज अडानी का मॉडल जो है शेयर बाजार का, वो अंबानी वाला मॉडल है, एक्सेप्ट कि उसको उन्होंने 10 गुना कर दिया। अंबानी केवल रिलायंस में घपला करते थे, ये 8 कंपनी खोल के 8 में कर रहे हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है। क्यों कि इन पर एक्शन नहीं होगा, और ये बात जानते हैं। लेकिन इसकी कीमत कभी देश को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जब शेयर मार्केट एक बार अगर गिरेगा और ये होगा तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, उसके बाद निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक नहीं आवेंगे, बाहर के निवेशक नहीं आवेंगे। वो कहेंगे भाई हमको बैंक में 8%, 10% इंटरेस्ट, 8% मिल रहा है, वो अच्छा है, कम से कम मेरी पूंजी तो बची हुई है। तो ये सब फेजेस। हाँ अरुण जी, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ही संक्षेप में, अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप क्या राय देंगे? तो ऐसा सिस्टम हमारे सामने खड़ा हुआ है, आप इन्वेस्टर्स को क्या राय देंगे कि क्या करें इन्वेस्टर्स इस समय?
इन्वेस्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास, अगर मान ले आपके पास 50 लाख रुपया है और आप 1 लाख रुपया उसमें खो देते हैं और कहीं पर 5 लाख रुपया बन जाता है, तो क्या आप सारा काम छोड़ के वो 1 लाख के पीछे पड़ेंगे, अपना समय गंवाएंगे? तो इन्वेस्टर की ये हालत है। छोटे छोटे, जैसे बिजली का रेट है, अगर आपको 1 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है तो आप क्या जाके लड़ेंगे? या जैसे टोल है, यहाँ पे हमारे यहाँ जो टोल है सबसे महंगा टोल है, वो उसमें सब गड़बड़ है, लेकिन आप उसके लिए लड़ेंगे तो है नहीं। तो आप यही कहेंगे अरे भाई ठीक है, हमारा 50 रुपया गया और लोगों का भी गया, तो आदमी संतोष कर लेता है। तो कहीं भी जब तक जो संस्था है जिसको काम करना है, सबसे पहले तो सेबी को सीबीआई और सीवीसी के अंदर में लावें, उनको वो एग्जेम्पशन नहीं दें, क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। ये आरबीआई वाला नहीं है कि इसको आप छोड़ दे रहे हैं, करप्शन के अंडर में लाइए, फिर आप देखिए तमाशा कि क्या होता है। ये बात है। तो इनको कोई पावर, एक पुरानी कहावत है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन, ना तो वो तो बहुत ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा कहना, क्योंकि इट इज हाईली इम्प्रॉपर टू से। लेकिन ये सेबी के ऊपर लगता है कि दे हैव पावर विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, मोस्ट अनअकाउंटेबल, मोस्ट करप्ट, मोस्ट नॉन ट्रांसपेरेंट एंड द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच अरुण जी, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि लोगों की आंखें खुलेंगी इस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, सुने कि अरुण अग्रवाल जी ने आज किन चीजों को एक्सप्लेन किया है, और राहुल गांधी का वीडियो, और जो हाल में ये जो इमर्जिंग इंडिया फोकस के फंड्स में जिस तरीके से सेबी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, सब आप उसके बीच में एक कनेक्ट निकाल सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।